Hey guys and welcome back to the channel. My name is Nishant Srivastava and I am your verbal ability guide for IPMAT and CUT entrance examination. For any details and query you can call or WhatsApp us at 7524833567. Do join our Telegram channel. The link is in the description, and if you are not able to join via the link, you can just search I am Blaster small cases without spaces on Telegram and you will get to it. So before starting the session, मुझे आपसे एक छोटी सी बात कहनी है. If you are liking this session, please like us. आते हो तो लाइक करके जाओ. कमेंट करो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको. इस नंबर पे कॉल करो ना करो डिफरेंट मैटर है, पहले कमेंट तो करो, मैं समझूँ तो आपकी प्रॉब्लम क्या है. ओके, अगर आप आते हो और अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ शेयर भी करिए. ओके, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आने वाले दिनों में हम रोज़ मॉक लाने वाले हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए. क्वेश्चंस अच्छे होने वाले हैं. लेट्स सी आज क्या है. सो सबसे पहला वी आर गोइंग टू डू vocab. I've brought about 10 words of vocab. Let's do and some RCs, fill in the blanks. So it's a combination of all the things. Around 17 question I have compiled together to form this test. So I'll give you the time to do the questions. First we'll discuss the word vocab. First word is cogitating. So what is the meaning of the word cogitating? Cogitating meaning to ponder or meditate, usually intently. Means to think over something. Think over something is called cogitating. Synonyms के क्या हो सकते हैं? Synonyms things, contemplate, remember it, consider common, conceive common, envisage. Just remember this, envisage also. Okay. Example, after much cogitation, we decided to move to Delhi. After much thinking, we decided to move to Delhi. Simple, move forward. Next word is mulling. What is mulling? Mulling is think about. जैसे cogitating था वैसे ही ये भी है. इसकी meaning है think about. Think about a fact, proposal, request. Deeply and at length. यहाँ पे एक word add हुआ है deeply. मतलब बहुत ही गहराई से किसी चीज को सोचना इज कॉल्ड mulling. सिनोनिम्स की बात करूंगा तो पॉन्डर, कॉमन, कंसीडर, वे अप, च्यू एंड एग्जामिन. दीज ऑल आर कॉमन सिनोनिम्स. यू कैन इजीली रीड और राइट देम. एग्जाम्पल की मैं बात करूं, whilst mulling over the offer, comma, he was given a deadline. जब तक वो सोच रहा था deeply over the offer, he was given a deadline for the offer. So this is the meaning of the example. Moving to the third word of the day, unsolicited. Unsolicited की meaning क्या होती है? Something not asked for or requested for. When you are not asking for something and it's provided, or you are not requesting for something, is called unsolicited. Unsolicited. Synonyms की मैं बात करूँ तो uninvited, obviously, unsought, this you should learn, unrequested कॉमन है, अनप्रॉम्प्टेड कॉमन है, अनबाइडन कॉमन है. अनसॉट थोड़ा सा अलग था, बाकी सब कॉमन वर्ड्स हैं जो आप उससे देख सकते हैं. अनसॉलिसिटेड इज समथिंग नॉट आस्क्ड और रिक्वेस्टेड फॉर. एग्जाम्पल की बात करूं, they may honestly admit their difficulty and risk receiving the unsolicited advice. मतलब जो भी उनको रिस्क था या उनकी एडवाइस, अनसॉलिसिटेड मतलब बिना मांगी हुई एडवाइस से जो भी उनको रिस्क था उनको उसके बारे में ऑनेस्टली एडमिट कर लेना चाहिए. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इनॉर्मिटी. इनॉर्मिटी वर्ड जो आया है वो एनॉर से आया है. एनॉर का मतलब कुछ बड़ा, जायंट, समथिंग बिग. इनॉर्मिटी, इनॉर्मस सब एक जैसे वर्ड है. द वेरी ग्रेट साइज, इफेक्ट और समथिंग, इफेक्ट एक्सेट्रा ऑफ समथिंग. Synonyms, big, large, huge, common, enormous, common, gigantic, good word. Humongous, it's a good word. You may confuse, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन colossal you need to learn. Gargantuan is you need to learn. Gargantuan.
गारगेंटुआन। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, वी वर शॉक्ड एट द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम दैट लुक लाइक अ एक्सीडेंट। The crime that looked like the accident, but it was a very big crime, enormous crime, so we were shocked. Next word is alleged. Alleged मतलब to accused, not proven or convicted. When you are being accused but you are not proven guilty or not been convicted, is called alleged. Synonyms: accused, suppose, we are supposing someone is guilty, or claimed, professed. These are common, but ostensible is non-common, you need to learn. Unproven, rumored, putative is also uncommon, you need to learn. Example की मैं बात करूँ, the mayor is alleged to have accepted the bribes. Alleged मतलब proven, accused, the mayor is accused to have accepted the bribes. आज मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ because there are many questions, 17-18 questions हैं, and these words are more common words. ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इन कॉमन वर्ड्स की भी मीनिंग, सिनोनिम्स नहीं पता होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको करा रहा हूँ, आज कराया या मैंने कल कराया या आगे भी मैं कराऊंगा, जो भी वर्ड्स हैं 10 में लेके आऊँगा सेट्स में, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब PYQ के हैं, किसी न किसी अच्छे एग्जामिनेशन से ये उठाए हुए वर्ड्स हैं, और मोस्ट प्रोबेबली IIMS के ही एग्जामिनेशन से उठाए हुए हैं जो आपके लेवल को मैच कर रहे हैं। ओके, सो कीप इन माइंड, ये इनकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज़्यादा है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है इनकी, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा और सेशन पे इसीलिए बने रहिएगा बिकॉज सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। 40-45 मिनट्स का मोस्ट सेशन, आई थिंक 45 मिनट तो पहुँचेगा भी नहीं, एंड अगर आप अपने दिन के 30 मिनट्स डिवोट करते हैं इन सेशंस को तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इलिसिटली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलिसिटली, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और इसकी मीनिंग बहुत अच्छी है। इन अ वे दैट इज कॉन्ट्रेरी और फॉरबिडन बाय द लॉ, मतलब क्या होगा, अनलॉफुल, इलीगल। सिनोनिम्स देखते हैं, फेलोनियस इंपॉर्टेंट, इलीगल, अनलॉफुल, इलेजिटिमेट, फॉरबिडन, क्रिमिनल, अनऑथराइज्ड सिनोनिम्स। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इट इज इलीगल टू किल एंडेंजर्ड एलिफेंट्स बट मेनी पोचर्स स्टिल इंगेज इन इलिसिट आइवरी ट्रेड। आइवरी मतलब जो टस्क होती है उससे आइवरी निकलता है, उसकी टस्क मतलब उसके दांत से जो आगे वाले होते हैं उनसे आइवरी निकलता है, तो उसकी पॉचिंग करते हैं। पॉचर्स मतलब हंटर्स होते हैं, वो उसकी पॉचिंग करते हैं मेनली आइवरी के लिए, काहे की, किसकी, एलिफेंट्स की। तो इट इज इलीगल, इलिसिट। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये एक जार्गन वर्ड है जो मैंने आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है, कल मैंने जार्गन्स के बारे में थोड़ा स्मॉल सा डिस्कशन किया था। आप ये समझिए कि जार्गन्स जो हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक, आप सर्च कीजिएगा, मैं आपको, अगर आप मुझसे डिमांड करेंगे कमेंट्स में तो मैं आपको जार्गन्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंथ्रोपोसेंट्रिक, regarding humankind as the central or most important element of the existence, especially as opposed to God and animals। मतलब something that is more of the human-centric and not considering God, animal, मतलब human को सबसे ऊपर मानना, ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग जिसमें ह्यूमन को सबसे ऊपर मानना above the God, animals और something else, किसी सबसे ऊपर है ह्यूमन को मानना। सिनोनिम्स की बात करूंगा तो एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिकल, ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमनिस्टिक, ये इसके हैं, ये चारों आपको देखने पड़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन सेंट्रिक तो कॉमन है, या एंथ्रोपिक और एंथ्रोपिकल आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अवर एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्शंस आर रूइनिंग द वर्ल्ड फॉर अस एंड एवरी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एंथ्रोपोसेंट्रिक ह्यूमनिस्टिक एक्शंस, क्या है इसका, ह्यूमनिस्टिक एक्शंस आर रूइनिंग द वर्ल्ड। अगर हम सिर्फ ह्यूमनिस्टिक एक्शन मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अकेले ह्यूमंस के बारे में सोचेंगे, ना एनिमल्स के बारे में सोचेंगे, ना किसी के बारे में सोचेंगे, तो ऑब्वियसली वी आर रूइनिंग द वर्ल्ड फॉर अस एंड फॉर एवरी अदर लाइफ फॉर्म आल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है क्लियर एंड एग्जैक्ट। इफ यू आर सेइंग समथिंग वेरी क्लियर, वेरी एग्जैक्ट, बिल्कुल एम्बिगुअस कहा है मैंने, तो इट्स एक्सप्लिसिटली।
सिनोनिम अनएम्बिगुअस, पहला वर्ड मैंने बताया था आपको, अगर आपको टफ लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, बट इट इज अ कॉमन वर्ड। डेफिनेटिव ऑब्वियसली, स्पेसिफिक, इक्वल, अनइक्विवोकल, इंपॉर्टेंट, डेफिनेट, कॉमन। एग्जाम्पल में बात करूं तो वी आर एक्सप्लिसिटली वार्न्ड अबाउट व्हाट कुड हैपन, क्लियरली वार्न्ड है, वी आर बीइंग क्लियरली वार्न्ड अबाउट व्हाट कुड हैपन, कॉमन। ओके, फ्लाउटेड इज द नेक्स्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इसको कम से कम 4 स्टार तो मिलने चाहिए। ओके, सो टू रिफ्यूज और ओबे, टू रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग, इफ वी रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग, इट इज कॉल्ड वी फ्लाउटेड ऑन समथिंग। एग्जाम्पल, डिफाई कर देना, स्कॉन कर देना इंपॉर्टेंट है, गो अगेंस्ट, डिसडेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फ्लाई इन द फेस, ये एक तरीके का फ्रेज आप समझ लीजिए है, आप इसको फ्रेज भी कह सकते हैं या फिर आप इसको इडियम भी कह सकते हैं। ओके, डिसओबे, वायलेट, ब्रीच कॉमन है। एग्जाम्पल की बात करूं, द गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रिंग इन मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब टफ, ओके, स्ट्रिक्ट, टफ और स्ट्रिक्ट इसकी मीनिंग है। द गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रिंग मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ड्राइवर्स हु फ्लाउट द लॉ, फ्लाउट द लॉ मतलब हु ब्रेक द लॉ और हु डिसओबे द लॉ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, आप अगर आपको इसको लिखना है और यू वांट टू राइट समथिंग और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, second is important again, not common but important. Second is a rapid movement of the eye between the fixation point. It's like the rapid movement, if we are moving our eyes from left to right between the fixation points, eye movement of eye between the fixation points is called saccades. सिनोनिम्स ज़्यादा नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं है ये। सो मूवमेंट, मोशन, मोबिलिटी कॉमन सिनोनिम्स है, कुछ खास नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इनको, आप वर्ड और मीनिंग याद रखिए इसकी बस। एग्जाम्पल, हर आई बॉल्स शोड कॉन्टिन्यूस इनवॉलेटरी रैंडम सेकेडेस इन ऑल डायरेक्शन। कॉन्टिन्यूस इनवॉलेटरी रैंडम आपको वर्ड पता है उनके उसमें सॉरी एग्जाम्पल में कहने का हर आई बॉल्स शोड सम रैंडम मूवमेंट, सेकेडेस मतलब movement between the fast movement, we can say between the eyeballs in all the directions. Now the second part, आज 10 vocab words हो गए आज के, डन। उसके बाद अब आते हैं एडिशनल, कुछ एडिशनल, कल मैंने कुछ एडिशनल नहीं कराया था बिकॉज टाइम की लिमिटेशन थी, आज कुछ एडिशनल करते हैं हम लोग। तो एक आरसी पैसेज है, चलिए करते हैं इसको। ओके, लेट पहले मैं इसको रीड करूंगा, देन विल गो ऑन द क्वेश्चंस एंड विल फिगर आउट व्हाट द थिंग्स आर। ओके, लेट्स रीड। सिंपल है, बहुत सिंपल पैसेज है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, लेकिन हाँ इतना भी सिंपल नहीं कि आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चंस इसके घुमा के पूछे गए हैं। ओके, पैसेज सिंपल है। लेबर एंड कैपिटल आर द अपोजिट पोल्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ साउथ जैसे होते हैं ना, वैसे ही लेबर एंड कैपिटल आर अपोजिट टू ईच अदर। दिस पोलैरिटी मतलब वही नॉर्थ साउथ बिगिंस इन ईच एंटरप्राइज and is realized on a national and even international scale as a giant duality of the classes. Duality मतलब dual nature of the classes. Dual nature मतलब लेबर एंड कैपिटल, गरीब अमीर जैसे वो, which dominates the social structure. Obviously the classes are dominating the social structure, and yet this polarity is incorporated in a necessary identity between the two. दिस पोलैरिटी क्या है, इसमें कहना चाह रहा है कि इनकी जो आइडेंटिटी है ना, इसी पोलैरिटी में ही है इनकॉर्पोरेटेड। Moving forward, whatever its form, whether as money or commodities or means of production, capital is labor. Important market, capital is labor. Okay, it is labor that has been performed in the past, the objectified product of the preceding phases of the cycle of production, which becomes capital only through appropriation by the capitalists and is used in the accumulation of more capital. Here you want to say that the capital is labor if the labor works, परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है डिफरेंट वेरियस साइकिल्स में परफॉर्म करता है, प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से कैपिटल जनरेट होती है। फिर वो कैपिटल को
कैपिटलिस्ट यूज करते हैं इन देयर रिक्वायर्ड फॉर्म टू जनरेट और एक्यूमुलेट मोर कैपिटल. At the same time as the living labor which is purchased by the capital to set the production process into motion, labor is capital. अगर हम लेबर के इसमें ये कहना चाह रहा है कि if we see from the labor's perspective, the living labor which is purchased by the capitalist to set the production process in motion, production process को motion में डालने के लिए, तो इस हिसाब से the labor is capital. So they both are polar, अगर अलग भी हैं और they run we can say that एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते. That portion of money, okay, that portion of money capital which is set aside for the payment of the labor, the portion which in each cycle is converted into living labor power is the portion of the capital which stands for and correspond to the working population and upon which the latter subsists. ये important है, subsist की meaning मैं आपको बताऊंगा अभी. Okay, then वो कह रहा है that portion of the money, जो भी मनी होता है उसको सेट असाइड करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ द लेबर. उसके उसी पोर्शन की वजह से पूरी ये साइकिल जो है कैपिटलिज्म और लेबर के बीच की साइकिल जो है वो चलती है. इसमें लिविंग लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी रोल प्ले करता है. एंड द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच स्टैंड्स फॉर एंड करस्पॉन्ड टू द वर्किंग पॉपुलेशन एंड विच लेटर, वो जो पोर्शन ऑफ द कैपिटल होता है वर्किंग पॉपुलेशन का, वो सबसिस्ट करता है. सबसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सबसिस्ट का मीनिंग होता है continue to have existence. ओके, मतलब सबसिस्ट करने के लिए, एग्जिस्टेंस करने के लिए लेबर को जो भी करना पड़ता है वो करता है अपने हिसाब से, एंड कैपिटलिस्ट उसको उसी तरीके से वो काम चलता है. एंड दे बोथ आर ऑन द साइकिल टू ईच अदर. अगर हम आगे चलते हैं तो बिफोर इट इज एनीथिंग एल्स देयरफॉर द वर्किंग क्लास is the animate part of the capital. Obviously I have said that it is the animate part of the capital, the part which will set the motion, the process which will set in motion the process that yields to the total capital increment of the surplus value. Increment जो भी होगा ये इसका important part है. As such the working class is first of all raw material of exploitation. ये working class is the first of all the raw material of exploitation. This working class lives in a social and political existence of its own. इसका खुद का एक existence है, social political उसके घिराव में. Outside the direct grip of the capital. Grip of the capital से बाहर है फिलहाल. इसकी जो thinking की बात कर रहा है. It protest करते हैं, submit करते हैं, rebel करते हैं और integrated into bourgeois. Bourgeois का meaning क्या होता है? Bourgeois का meaning होता है middle class. Something that is middle class. So it protests and submits, rebels or it's integrated into bourgeois. Integrated मतलब मिडिल क्लास सोसाइटी. या तो वो प्रोटेस्ट करता है, सबमिट करता है, रिबल करता है, या फिर इंटीग्रेट हो जाता है किसमें? मिडिल क्लास सोसाइटी में. सीट इटसेल्फ एज द क्लास और लूजेस साइड ऑफ इट्स. या तो वो अपने आप को क्लास की तरह देख सकता है या फिर अपनी एग्जिस्टेंस का साइड ही भूल जाता है, भूल ही जाता है कि उसका एग्जिस्टेंस किस लिए हुआ है. इन अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन इट एंड द मूड्स. कंजक्चर, कंजक्चर मतलब क्या होता है? कंजक्चर्स मतलब होता है जैसे कंजक्शन वर्ड आपने सुना होगा. तो कंजक्चर का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स. सम इफ टू और मोर इवेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन इवेंट्स and the conflicts of the social and political life. But since it is in its permanent existence, it is the living part of the capital. Obviously it is the permanent existence की बात करेंगे तो उसमें it is the living part of the capital. Its occupational structure, modes of work and the distribution through the industries of the society are determined by the ongoing processes of the accumulation of the capital. It is seized मतलब जब्त कर लिया गया है. Released, flung का मीनिंग क्या होता है? Flung का मीनिंग होता है to throw something, someone with a great force. So flung into, it is thrown into various parts of the social machinery and expelled by the others. Not in accord with its own will, अपनी खुद की will से नहीं और self activity से नहीं, but in accord with the movement of the capital. Capital की movement के हिसाब से लेबर
को मूव कराया जाता है, या और वी कैन से दैट यहाँ इसने वर्ड यूज किया है वर्किंग क्लास को मूव कराया जाता है। ये एक छोटा सा इसका जिस्ट मैंने आपको दिया है। इट्स नॉट द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज एंड ऑब्वियसली यू डू नॉट नीड द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज, you just need to have the essence of the passage to understand the questions and to give the answers। क्योंकि आपको वहाँ पे कोई थ्योरी या पीएचडी नहीं लिखनी है इसके बारे में, you just have to understand the questions and give the answers। so आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो while labor is capital, ओके उसने एक वर्ड यूज किया है, it is pulled apart from each other because, let me correct it, eraser, okay, one second, it is pulled apart from each other because, why it is pulled apart from each other? Because labor does not have its own will of its own। हाँ ये सही है, because but it is स्टेटमेंट में तो कह रहा है लेबर इज कैपिटल, ये वर्ड भी तो है ना, तो कैपिटल से कोई रिलेशन दिखा नहीं रहा है इसमें, सो इट इज नॉट द आंसर। The will of the capital overpowers the will of the labor, हाँ कह सकते हैं, अभी इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। कैपिटल इज लेबर परफॉर्म्ड इन द पास्ट, नो ऐसी कोई वर्ड की बात नहीं हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई पूरे पैसेज में। ये बात हुई थी मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी बात नहीं हुई है। लेबर एग्जिस्ट आउटसाइड द डायरेक्ट ग्रिप ऑफ द कैपिटल, ये बिल्कुल सही है, कैपिटल की ग्रिप से होता है, लेकिन क्या ये पोल्स अपार्ट्स हैं इसको डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। So option number B will be the right answer। Moving forward, question number 2 की बात करते हैं। According to the passage, what does the working class subsist? Subsist का मीनिंग मैंने बताया था आपको क्या होता है। Subsist का मीनिंग होता है continue, sorry for the writing, to have existence, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द वर्किंग क्लास सबसिस्ट ऑन, मतलब क्या मतलब क्या ऐसी चीज है जिसपे वर्किंग क्लास जो है कंटिन्यू करता है एग्जिस्टेंस पे। द बिलीवेंस ऑफ द बर्गरिस सोसाइटी, बर्गरिस मिलिस, देखिए बर्जियस सोसाइटी जो है वो मिडिल क्लास सोसाइटी है, और बिलीवेंस मतलब उनकी दया भाव, तो दया भाव और बर्गरिस तो हो नहीं सकता बर्जियस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है द लिविंग लेबर। According to the passage, again read the question first। According to the passage, what does the working class subsist on? On the living labor। Working class तो खुद ही living labor है, obviously not। Capital which is same as labor, no no no, capital पे नहीं होता है, या हो सकता है बताइए? Capital पे नहीं होता है, okay। Living labor purchased by the capitalists, obviously it is the living labor। द वर्किंग क्लास सबसे ऑन, भाई वर्किंग क्लास किस अपना एग्जिस्टेंस कैसे ढूंढता है? अपना एग्जिस्टेंस ढूंढने के लिए वो क्या करता है? कैपिटलिस्ट लोग जो उनको परचेज करते हैं अपने काम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, मशीनरी वर्क के लिए, या आपके कोई प्रोडक्शन के लिए, उसी पे तो लेबर क्लास या लिविंग क्लास या वर्किंग क्लास जो है डिपेंड करता है। तो वही तो यह कह रहा है, लिविंग लेबर परचेज बाय द कैपिटलिस्ट। सो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 3, which of the following statement is true according to the passage? बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन कह रहे होंगे ना, क्वेश्चन तो सिंपल है। सो कैपिटल एक्सप्लॉइट्स द वर्किंग क्लास, हाँ वी कैन से दैट इट इज मे बी ट्रू। एसेंस, देखिए कहीं भी उसने स्टेटमेंट ऐसे यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ ये है कि एसेंस अगर मैं स्टेटमेंट का पैसेज का देखूं तो कैपिटल एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास एक राइट ऑप्शन बन सकता है, अगर इससे बेहतर कुछ नहीं मिल गया तो। ओके, द वर्किंग क्लास व्हेन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल इज एक्सप्लॉइटेड बाय द बर्गरी, बर्गरी से एक्सप्लॉइटेड नहीं हो सकता क्योंकि बर्गरी ऑलरेडी एक मिडिल क्लास है, ये ऑप्शन गलत है। वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सोशल, नो 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 नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो उसके लाइफ के बारे में है, इसके एक्सप्लॉइटेशन के बारे में थोड़ी नहीं है। The pursuit of the capital accumulation results in the exploitation of the working class, this is right, because जो ये स्टेटमेंट जो है आपके पैसे से फुल्ली मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाना है। The pursuit of the capital accumulation results in the exploitation of the working class and this is mentioned in the passage itself।
मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, आप ये स्टेटमेंट पढ़िए और उसको रीअरेंज करिए, तब तक मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लूँ। पढ़ा स्टेटमेंट? बढ़िया है ना? अच्छे ही स्टेटमेंट होंगे क्योंकि ढूंढ के लाया हूँ। सो देखो, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट सी दी ऑप्शंस। सबसे पहला काम इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस देखने होते हैं, बिकॉज ऑप्शन देखने से ही आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अगर मैं देखूँ, भाई पहले ये पहला 3 है, ये पहला 3, ये पहला 3 है, तो ऑब्वियसली ये अलग है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं पहले। We caution that the theory of hyperspace has not been experimentally confirmed. Obviously ये एक मिड स्टेटमेंट है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हटा दो। अब बचा कौन सा? ए, बी, डी। इसका मुझे पता चल गया कि पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड ये है, ठीक। Scientifically, the hyperspace theory goes by the names of Kaluza-Klein theory and supergravity. अब सेकेंड लाइन पे अगर चेक करें, देखना 1 और 4 के बीच में यहाँ लड़ाई चल रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम ये डिसाइड कर ले कि 1 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, तो ऑब्वियसली वी कैन डू द थिंग्स। सो पहले 4 को चेक कर लेते हैं। द यूजुअल 3 डायमेंशन स्पेस लेंथ विथ ब्रेथ एंड 1 ऑफ टाइम आर नाउ एक्सटेंडेड बाय द 6 मोर स्पेशियल डायमेंशंस। ओके, नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1, but its most advanced formulation is called superstring theory. Okay, now यहाँ मैच कर रहा है। देखिए, scientifically the hyperspace theory goes by the names of this and supergravity, but its most important most advanced formulation is called superstring theory, which even predicts the precise number of dimension, that is 10. So हमारा पता चल गया ना मुझे सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट ये बन गया। अब अगर पहला 3 है, सेकंड 1 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, और तीसरा 4 हो जाएगा, ये भी पता चल गया यहाँ से, ठीक है। ओके, तीसरा 4 हो गया। अब लास्ट में 5 और 2 के बीच में लड़ाई है। लेट्स चेक इट आउट, है ना, क्या हो सकता है। पहले 2 चेक करते हैं। 5 वी हैव चेक्ड। हाउएवर, देखो लास्ट हाउएवर वर्ड ही सबसे बड़ी है चीज। हाउएवर वर्ड जो है किसी चीज को कंक्लूजन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये वर्ड लास्ट में आना है। इसको 5 मार्क कर दो, इसको 4 मार्क कर दो, और इसको देख लो कि क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 3 है, 1 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 2 है। तो कौन सा ऑप्शन है? 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ना कि पूरा पहले पढ़ लिया। और आप पूरा पढ़ोगे ना एक बार में, आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपको टाइम को बिल्कुल मनी की तरह ट्रीट करना है। तो टाइम इज मनी वाली कहावत जो है ना, उसको आपको एग्जाम में 100% लगा के आना है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन एक है। फिर से आप स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। नहीं, अब ऑप्शंस पढ़िएगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप पढ़िए एक बार इसको, ऑप्शंस को एक बार जज करने की कोशिश कीजिए कि क्या ऑप्शन से आंसर निकल सकता है। सो देखिए क्या है ऐसा। देखिए आपको एक बात, इफ यू सी, यू कैन सी दैट 3 and 3 इन दोनों में है, एंड यहाँ 5 and 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वन रूल, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100% बट 98% टाइम ऐसा होता है कि जिन ऑप्शंस में सेम होते हैं नंबर्स, उन्हीं में से एक करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम चारों देखेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। इट इज लेस अपीलिंग बट नॉर्मली मोर अर्जेंट टू अंडरस्टैंड द एक्शंस। अब ये देखिए, इट इज लेस अपीलिंग, एक बीच का वर्ड है, कहीं स्टेटमेंट के बीच का वर्ड है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ये।
अगर हम ऑप्शन नंबर 5 को चेक करते हैं, बाय डेफिनेशन द विक्टिम्स आर डेड अनएबल टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम द यूज ऑफ अदर, नो, ये भी बीच का है। तो ऑब्वियसली आपके दो ऑप्शन तो यहीं कट गए, देखिए कट गए। और जैसे ही आपके दो ऑप्शन कटे, अब आपके पास क्या 50% प्रोबेबिलिटी बच गई दोनों ऑप्शन की। अब आप चेक कर सकते हैं इजीली, कैसे 3 कंफर्म आपका है, 3 कंफर्म हो गया, ठीक है। अब 5 और 1 में से चूज करना है, चूज करते हैं। इट इज क्या है, द विक्टिम्स वर द पीपल, अ ट्रू आइडेंटिफिकेशन विद देम वुड इन्वॉल्व ग्रास्पिंग देयर लाइव्स रादर देन ग्रास्पिंग एट देयर डेथ्स। बाय द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम, ऑब्वियसली इसको कंक्लूड कर रहा है स्टेटमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ विक्टिम्स, यहाँ विक्टिम्स की बात की गई, यहाँ डिफाइन किया गया है, ऑब्वियसली ये दूसरा हो जाएगा। अब आप सिर्फ इन दो चीजों को देख के, इन दो स्टेटमेंट को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3, 5 वाला जो है वो सही है और ये गलत है। तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू नीड डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ऑल द लेटर्स, ऑल द वर्ड्स, बट कम में ही आपका काम हो गया। एंड दिस इज द टाइप ऑफ द स्मार्ट वर्क इज यूज्ड टू कॉन्कर द एग्जामिनेशन। आप एग्जाम तभी निकाल पाएंगे जब आप इस तरीके का स्मार्ट वर्क और स्मार्ट माइंड यूज करेंगे। फिर भी यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। एक है परपेट्रेटर्स, इसका मीनिंग होता है द पर्सन हु कैरीज आउट हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट। ओके, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, लेट मी मार्क इट। ओके, एक वर्ड है सैंटिफाई, सैंटिफाई यहाँ यूज हुआ है। सैंटिफाई का मीन टू मेक समथिंग हॉली और प्योर, किसी चीज को प्योर बना देना सैंटिफाई कहलाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है जिन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखा है। ओके, और मोस्ट ऑफ द जनता ने देखा ही होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक FIB क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, और मल्टी FIB है, क्लोज टेस्ट की तरह होता है। ओके, लेट्स मूव। द लैनिस्टर्स हैड, ओके, ऑप्शंस पहले एक बार चेक कीजिएगा। देखिए लेस और फ्यूअर, इन दोनों वर्डों में कंफ्यूजन है। देखिए मैं आपको लेस फ्यूअर की कहानी समझाता हूँ। लेस जो है, हम लोग वी यूज लेस वेयर द क्वांटिटी इज अनफिक्स्ड, ठीक है, एंड वी यूज फ्यूअर व्हेन द क्वांटिटी इज फिक्स्ड। अब इसकी मीनिंग क्या है? क्वांटिटी फिक्स क्या? If we are comparing something with some other thing and the quantity is unfixed, we use less. And if we are comparing something with some other thing and the quantity of other thing is fixed, then we use fewer. अब इसका implication देखते हैं कैसे होता है। Okay. The Lannisters had gold than, numbers are not fixed, we can use it less gold than the Tyrells until the Lannisters army sacked मतलब कब्जा कर लिया, हाई गार्डन एंड टुक द Tyrells fortune मतलब पैसा, टू पे बैक द आयरन बैंक। ओके, ऑन द अदर हैंड द नॉर्दर्न आर्मी हैज, देखिए यहाँ हैज डैश 10,000 मैन, या नंबर्स मेंशन, फ्यूअर लिख देंगे यहाँ पे। आपकी प्रॉब्लम देखिए 2 मिनट में सॉल्व हो गई, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। इस कॉन्सेप्ट से, ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट से आप आसानी से इसमें यहाँ फिलअप कर सकते हैं। ओके, then 10,000 men and therefore John needs to bend the knee to Daenerys. What happens in the next story is dependent upon George R. Martin, the writer of the series. Okay, for क्या some time, अब देखिए यहाँ sometime के 3 अलग 4 वेरिएशन दे रखे हैं, कैसे यूज करना है। ओके, for some time he has not written anything further and we hope George R. Martin will get around to finishing the book sometime, but as it happens sometimes book releases are delayed। देखो book releases are delayed की बात कर रहा, तो यहाँ तो हो जाएगा from sometimes, TIMES आखिरी में लगेगा। ऑप्शन सेलेक्ट करो, sometimes वाला कौन सा, ये है, ये, बाकी ये तो हट गया, ठीक है। पहले में लेस कौन सा ऑप्शन है, लेस वाला ऑप्शन नंबर ये है, ये, बाकी ये फ्यूअर वाला ये भी हट गया। ओके, देखिए एलिमिनेशन की टेक्निक कितनी काम पे आती है। दिस इज एलिमिनेशन टेक्निक। अब आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी बची यहाँ पे आते आते। अब
क्या ऑप्शंस कह रहा है, यहाँ पे सम टाइम गैप के साथ है, यहाँ नॉर्मल है, चूज करना है हमें। तो देखिए कैसे होता है, और यहाँ पे सम टाइम कॉमन है, यहाँ नॉर्मल के साथ मतलब गैप के साथ लिखा है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, गैप का मीनिंग क्या है? गैप का मीनिंग ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत पहले की बात है, पास्ट में अगर वो बात करेगा, फॉर सम टाइम ही हैज नॉट डन समथिंग, और फॉर बीइंग सम टाइम ही हैज नॉट बीन इन अ गुड मूड, तो वहां पे गैप वर्ड यूज करेंगे। जैसे ही हैज नॉट रिटन द बुक और एनीथिंग फर्दर, यहाँ पे हम सम टाइम विद गैप यूज करेंगे। लेकिन वही सेकंड जगह पे बात करेंगे, सेकंड प्लेस पे बात करेंगे, वी होप जॉर्ज आर मार्टिन विल गेट अराउंड फिनिशिंग द बुक सम टाइम, यहाँ कॉमा हो जाएगा, यहाँ मतलब सॉरी बिना गैप के लिखेंगे, यहाँ पे गैप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि अराउंड फिनिशिंग द बुक सम टाइम विल गेट, मतलब फ्यूचर में जल्दी ही कंप्लीट कर देगा। सो ये टेक्निक आप यूज करेंगे तो आप ऑप्शंस मैच करेंगे। अब ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है, एक सम टाइम गैप वाला पहला वाला है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप करिए और आपके सारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज एग्जाम में जरूर कीजिएगा, बिकॉज एलिमिनेशन ही ऐसी टेक्निक है जो आपको कम मेहनत में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पे फोकस करेगी, वरना आप पढ़ते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। Now, this is the last question of the day. A small para based question है ये. Let's see. The size of oceanic waves is the function of velocity of the wind and the fetch, the length of the surface of water subject to those winds. Okay. The average impact of waves against the coastline is the function of the size of the wave and the shape of the sea bottom. The degree of erosion on coastline is a function of average impact of waves and the geologic composition of the coastline. Now, the question is saying, according to the above paragraph, which of the following option will be true? Question बड़ा easy है, options tough होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अब आप लोग या तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, या फिर अगर आप लाइव देख रहे हो, लाइव तो कोई नहीं देख रहा हो क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ये, सॉरी। सो अगर आप लोग रिकॉर्डेड इसको देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। सो पॉज जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन पढ़ते हैं। द फेच ऑफ विंड इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ सी बॉटम। देखो यहाँ पे फेच की बात कर रहा है, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द फेस ऑफ द सी बॉटम, बिकॉज सी bottom shape is related to average impact. So ये ऑप्शन गलत हो गया। The size of oceanic waves will not fluctuate far from average. The size of the oceanic wave is the function of the velocity, not from average. So ऑप्शन नंबर गलत हो गया। The size of oceanic waves is correlated with the shape of the sea bottom. Shape of the sea bottom is related to average impact, not the size. ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। देखो यहाँ 3 गलत हो गए, लेकिन ये ऑप्शन भी तो गलत ही है। The degree of erosion on coastline is related to the shape of the sea bottom. By degree of erosion, he is saying the degree of erosion on the coastline is a function of average impact, not the shape of the sea bottom. अब सवाल ये उठता है कि इसमें से ऑप्शन होगा फिर क्या, अगर चारों में से एक सही है, ये गारंटी है। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए आप लोग, 1 मिनट का समय चाहे लीजिए इसके लिए, लेकिन दिमाग लगाइए। देखिए क्या है ना इसमें कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप अगर इस लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर के 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, द अबव 3 स्टेटमेंट जो हैं वो तो गलत है, वी कैन सी दैट फ्रॉम फार, बट दिस स्टेटमेंट इज राइट। कैसे? देखिए इरोजन एंड शेप आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। इरोजन इज रिलेटेड टू एवरेज इम्पैक्ट एंड एवरेज इम्पैक्ट इज रिलेटेड टू साइज एंड द शेप ऑफ द सी बॉटम। इसी तरीके से इरोजन एंड शेप ऑफ द सी बॉटम आर बोथ रिलेटेड, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड। और एग्जामिनेशन में इसी तरीके के घुमावदार क्वेश्चन ही वो बार बार पूछता है आपसे। वो आपकी सिर्फ मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है, नॉट योर इंग्लिश स्किल्स। वो आपकी रीडिंग हैबिट को चेक करता है, ना कि आपकी ग्रामर। ग्रामर तो बहुत ही
कम लेवल पे चेक करता है, वो मेनली आपकी लेवल कम रहता है, रीडिंग का ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेवल रहता है। रीडिंग और वोकैब आर द 2 थिंग्स टू कॉन्कर इन आईपी मैथ्स एंड सीयूटी। अगर आपने इन दोनों में पकड़ बना ली तो वर्बलिटी आपके लिए मजाक बन जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं हम लोग। थैंक यू। एंड कल इसी टाइम पे अराउंड 10:30 PM पे वीडियो फिर आएगा विद अनदर मॉक सेशन। अब ये मॉक आपके रोहतक के एग्ज़ाम तक का तो पक्का आएंगे। 20 मई जो कि डेट आ गई है, तो रोहतक के एग्ज़ाम तक का आपके मॉक्स आते रहेंगे। और हाँ, मैं आपको इंटीमेट कर दूं इस चीज़ के लिए कि ये जो मॉक्स हैं मैं जो करवा रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली फॉर रोहतक, इट्स अ मिक्स मॉक। ये आपके इंदौर, कुछ क्वेश्चन इंदौर के हैं। अच्छा, कल से मैं जब कराऊंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो किस एग्जामिनेशन के हिसाब से। ओके, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा पढ़ना और मेरे लिए भी बताना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको मॉक प्रैक्टिस करने हैं तो सबसे पहले आप हमारी IIM ब्लास्टर्स की ऐप डाउनलोड करें और उस पर जाके साइन अप करके फ्री मॉक्स लगाएं। सबसे पहला काम, ठीक है। अगर आपको फ्री मॉक लगाने में अच्छा लगता है, देन यू कैन बाय एट 199 पर मंथ। एंड ये ऑफर जो है फिलहाल अभी हमारा 7 मई तक वैलिड है। सो अभी दिन कितने बचे आप काउंट कर लेना अपने हिसाब से। ये ऑफर है 199। पहले आप फ्री तो जाके लगाओ। मैं चाहता हूं कि आप फ्री मॉक्स, अगर आप रोहतक कर रहे हो या इंदौर कर रहे हो या जिपमैट कर रहे हो या तीनों कर रहे हो, डजेंट मैटर, तो कम से कम फ्री मॉक्स आप उसको अटेम्प्ट करो, बिकॉज द मॉक्स आर रियली फाइन एंड गुड। एंड जस्ट डू अटेम्प्ट द मॉक्स, आपको मजा आएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। निशांत श्रीवास्तव दिस इज साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ भैया सेशन को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। टाइम 10:30 PM मैंने मेंशन कर दिया है। वीडियोस इसी टाइम के अराउंड रोज आएगा। अगर आप बढ़ेंगे आप लोग तो लाइव सेशन भी कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन अब अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो लाइव सेशन का कोई वैल्यू नहीं बचेगा। जब तक आप क्वेश्चन ना पूछें, मैं आपको आंसर ना दूँ, तो उस लाइव सेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो एटलीस्ट कुछ बच्चे होंगे तो मैं लाइव सेशन के लिए सोचूंगा। फिलहाल रिकॉर्डेड मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बिकॉज टाइम बाउंडेशन है, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं आजकल सबके। सो ये थिंग्स थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मॉक रोज आएंगे, ये बात की मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ। ओके, सो गुड नाइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।